بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم تفسیر ابن کثیر کو آگے کنٹینیو کریں گے، ضیاء القرآن کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 130 سے لے کر 136 130 to 136۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التی اعدت للکافرین واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون اولئک جزاؤهم مغفرۃ من ربهم وجنۃ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ ترجمہ: اے ایمان والو، نہ کھاؤ سود دوگنا چگنا کر کے، اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور بچو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کریم کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور دوڑو بخشش کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور دوڑو جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جتنی ہے، جو تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ وہ پرہیزگار جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی اور تنگ دستی میں، اور ضبط کرنے والے ہیں غصے کو، اور درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کر بیٹھیں گے جو کوئی برا کام یا ظلم کریں اپنے آپ پر، تو فوراً ذکر کرنے لگتے ہیں اللہ کا، اور معافی مانگنے لگتے ہیں اپنے گناہوں کی، اور کون بخشتا ہے گناہوں کو اللہ کے سوا، اور نہیں اصرار کرتے اس پر جو ان سے سرزد ہوا، اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں۔ یہ وہ نیک بخت ہیں جن کا بدلہ بخشش ہے اپنے رب کی طرف سے، اور جنت رواں ہیں جن کے نیچے ندیاں ہمیشہ رہیں گے، ان میں کیا ہی اچھا بدلہ ہے کام کرنے والوں کا۔ تفسیر: یا ایھا الذین آمنوا، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو سودی کاروبار اور سود خوری سے منع فرما رہا ہے۔ دور جاہلیت میں بعض لوگ سود پر قرض دیتے تھے، مقررہ وقت پر وہ قرضدار کو کہتے یا تو اپنا قرضہ ادا کر دو یا اس میں سود میں اضافہ کرو۔ اگر وہ قرض ادا کر دیتا تو فبہا، ورنہ وہ مدت میں اضافہ کرنے کے ساتھ سود میں بھی اضافہ کر دیتے۔ اس طرح ہر سال اضافہ کرتے جاتے، جس کی وجہ سے تھوڑا سا قرض کئی گنا ہو جاتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تقوی کا حکم دیا ہے تاکہ وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آتش دوزخ سے بھی ڈرایا ہے۔ پھر اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دے کر اپنے قرب کے حصول کے لیے سبقت لے جانے کی تاکید فرمائی ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے نار جہنم تیار کی ہے، اسی طرح مومن کے لیے جنت تیار کی ہے جس کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اس کی لمبائی کا کیا عالم ہوگا۔ جس طرح جنتی بستر کی تعریف میں فرمایا بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ، سورہ رحمان، یعنی اس کا استر نرم ریشم کا ہوگا، ریشم کا بنا ہوا ہے۔ جب اس کا استر اتنا نرم ہے تو اس کا ظاہر کتنا نرم ہوگا۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ جنت کی چوڑائی اور لمبائی برابر ہے، کیونکہ جنت عرش کے نیچے واقع ہے، اور جو چیز قبہ نما گول ہو اس کی لمبائی اور چوڑائی برابر ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث اس کی تائید کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو اس سے جنت فردوس مانگا کرو، کیونکہ یہ سب سے اعلیٰ اور عمدہ جنت ہے۔ اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں، اور اس کی چھت اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ یہ آیت کریمہ سورہ حدید کی اس آیت تیزی سے آگے بڑھو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے کی مثل ہے۔ مسند امام میں ہے کہ شہنشاہ روم ہرقل نے بطور اعتراض حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال بھیجا کہ آپ نے مجھے جس جنت کی دعا دی ہے اس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، تو فرمائیے جہنم کہاں گئی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا سبحان اللہ، جب دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حمص میں میری ملاقات
हरकल के उस कासिद से हुई जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हरकल का खत लेकर गया था। वो उस वक़्त बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसने बयान किया कि जब मैंने ये खत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया तो उन्होंने अपने बाएं तरफ बैठे हुए एक सहाबी को ये खत दिया। मैंने लोगों से खत पढ़ने वाले का नाम दरियाफ्त किया तो उन्होंने फरमाया कि ये हजरत माविया रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। यहूद ने भी हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से यही सवाल किया था। आपने उन्हें इरशाद फरमाया, मुझे ये बताओ, जब दिन आता है तो रात कहाँ जाती है, और जब रात आती है तो दिन कहाँ जाता है। यहूदी इस जवाब से खसियाने होकर कहने लगे कि ये जवाब तो रात से अखज़ किया गया है। यही जवाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से भी मरवी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही सवाल किया। आपने फरमाया कि जब रात आती है तो हर चीज़ पर छा जाती है, तो दिन कहाँ जाता है। उसने कहा, जहाँ खुदा चाहता है। आपने इरशाद फरमाया, इसी तरह जहन्नुम भी वहाँ होगी जहाँ अल्लाह चाहेगा। ये जवाब दो मायनों का एहतमाल रखता है। एक ये कि दिन के वक्त रात नजर न आने से ये लाजिम नहीं आता कि वो किसी दूसरी जगह मौजूद ना हो। इसी तरह को जन्नत का अर्ज इतना ही है, लेकिन फिर भी जहन्नुम के वजूद से इनकार नहीं हो सकता। जहन्नुम उसी जगह है जहाँ खुदा की मशीयत है। दूसरा ये कि जब दुनिया के एक हिस्से में दिन होता है तो एक हिस्से में रात होती है। इसी तरह जन्नत आसमान के ऊपर आला अलयीन में है और दोज़ख असफल अलसाफलीन में है। इस कौल से मज़कूरा एतराज़ ख़त्म हो जाता है। अल्लज़ीना युनफ़िकून फ़िस्सर्राई, इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने अहले जन्नत का वस्फ बयान किया है कि वो तंगी और खुशहाली, खुशी और गमी, तंदुरुस्ती और बीमारी, अलगर्ज हर हाल में अपना माल अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं। जैसा कि एक और जगह इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना युनफ़िकूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानियतन, सूरह बकरा। तर्जुमा, जो लोग खर्च किया करते हैं अपने माल रात और दिन में छुप कर और अलानिया तौर पर। मकसद ये कि कोई चीज़ भी उनको अल्लाह की अताअत और उसकी खुशनुदी में माल खर्च करने और उसकी मखलूक पर एहसान करने से नहीं रोक सकती। वल काज़िमीन अल गैज़, जब उनको गुस्सा आता है तो उसको पी जाते हैं, यानी अपने गुस्से का इजहार नहीं करते और बुराई से पेश आने वाले को माफ़ कर देते हैं। हदीस कुदसी है, ऐ इब्ने आदम, अगर गुस्से के वक्त तू मुझे याद रखेगा तो मैं तुझे हिलाकत से बचा लूँगा। इमाम अबू याला अपनी मसनद में रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने गुस्से को रोक लेता है अल्लाह ताला उससे अपना अजाब दूर कर देता है, और जो शख्स अपनी ज़ुबान को बुरी बातों से महफूज रखता है अल्लाह ताला उसकी पर्दा पोशी फरमाता है, और जो अल्लाह ताला की बारगाह में अपना उज़्र पेश करता है अल्लाह ताला उसके उज़्र को कबूल करता है। ये हदीस गरीब है और इसकी संद में कलाम है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहादुर वो नहीं जो कुश्ती में किसी को पछाड़ दे, बल्कि बहादुर वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू पा ले। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कौन है जिसे अपने वारिस का माल अपने माल से ज़्यादा महबूब हो। लोगों ने अर्ज़ की, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है। आपने फरमाया, मेरा ख्याल है कि तुम अपने माल से ज़्यादा अपने वारिस के माल को पसंद करते हो, क्योंकि तुम्हारा माल हकीकत में वही है जो तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे, और जो तुम बाकी छोड़ जाओगे वो तुम्हारा नहीं तुम्हारे वारसों का होगा। फिर इरशाद फरमाया कि तुम्हारे नज़दीक पहलवान कौन है। हमने अर्ज़ की, जिसे कोई गिरा न सके। आपने फरमाया, नहीं, बल्कि पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखे। फिर इरशाद फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है कि बे औलाद कौन है। हमने अर्ज़ की, जिसकी औलाद न हो। आपने फरमाया, नहीं, बल्कि बे औलाद वो है जिसकी ज़िंदगी में कोई बच्चा फौत ना हुआ हो। इस हदीस के पहले हिस्से को इमाम बुखारी ने रिवायत किया है। एक रिवायत में इरशाद फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है कि मुफलिस कौन है। सहाबा ने अर्ज़ की, जिसके पास माल ना हो। आपने फरमाया कि हकीकी मुफलिस वो है जिसके पास माल हो और वो उसे अल्लाह की राह में खर्च ना करे और उसी हालत में मर जाए। फिर आपने इरशाद फरमाया, पहलवान कौन है। अर्ज़ की कि वो जिसे कोई पछाड़ न सके। आपने फरमाया कि हकीकी पहलवान वो है जिसे शदीद गुस्सा आए और गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख और जिस्म कपकपाने लगे तो वो उस गुस्से को पी जाए। हज़रत हारिसा बिन कदामा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसी नसीहत फरमाएं जो मेरे लिए फ़ायदा मंद हो और मुख्तसर हो ताकि मैं उसे याद रख सकूं। आपने फरमाया कि गुस्सा न कर। हज़रत हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु ने बार बार यही सवाल दोहराया और आपने हर बार यही जवाब दिया। एक शख्स ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे नसीहत फरमाएं। आपने फरमाया कि गुस्सा मत करो। वो शख्स कहता है कि गौर व फिक्र के बाद मुझे मालूम हुआ है कि गुस्सा ही तमाम बुराइयों की जड़ है।
इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु अपने हौज़ पर जानवरों को पानी पिला रहे थे। कुछ लोगों का वहां से गुजर हुआ। वो अपने साथ से कहने लगे कि तुम में से कौन है जो हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु के हौज़ को तोड़कर उन्हें गुस्सा दिलाए। एक शख्स ने कहा, मैं। वो आगे बढ़ा और उस हौज़ को तोड़ दिया। हज़रत अबू ज़र खड़े थे, आप बैठ गए और फिर लेट गए। किसी ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो आपने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इरशाद फरमाया कि जब तुम में से किसी को गुस्सा आए वो अगर खड़ा हो तो बैठ जाए, अगर बैठने से गुस्सा खत्म हो जाए तो ठीक, वरना लेट जाए। अबू वाइल अस्मानी फरमाते हैं कि हम हज़रत उर्वा बिन मोहम्मद के पास बैठे थे कि अचानक एक आदमी आया और कोई ऐसी बात कही जिससे वो गुस्से में आ गए। जब आपको गुस्सा आया तो आप खड़े हो गए, वजू फरमाया और वापस आ गए। फिर इरशाद फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि गुस्सा शैतान की तरफ से होता है और शैतान आग से पैदा हुआ है और पानी आग को बुझा देता है। लिहाजा जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो वो वजू कर लिया करे। इसको अबू दाऊद ने रिवायत किया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी तंगदस्त को मोहलत दी या उसका कर्जा माफ कर दिया, अल्लाह ताला उसे जहन्नुम की आग से बचा लेता है। फिर इरशाद फरमाया, लोगों गौर से सुनो, जन्नत के अमाल सख्त और मुश्किल हैं और जहन्नुम का काम आसान और सहल। खुशबख्त वो है जो फितरों से बचे। अल्लाह ताला के नज़दीक गुस्से के घूंट से ज्यादा और कोई पसंदीदा नहीं है। जब कोई मोमिन अल्लाह ताला के लिए गुस्सा पीता है तो अल्लाह ताला उसके दिल को नूर ईमान से भर देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपना गुस्सा उतारने की ताकत रखने के बावजूद पी जाए, अल्लाह ताला उसका दिल अमन व अमान से भर देता है। और शख्स तवाज़ो और इनकिसारी की वजह से कुदरत के बावजूद खूबसूरत कपड़ा न पहने, अल्लाह ताला उसे इज़्ज़त व करामत की खिलत पहनाएगा। और जो कोई किसी का सर छुपाए, अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन बादशाहत का ताज पहनाएगा। हज़रत अनस से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुदरत के बावजूद अपना गुस्सा पी ले, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे तमाम मखलूक के सामने बुलाकर इख्तियार देगा कि वो जिस हूर को चाहे पसंद कर ले। इस मजमून की और भी हादीस हैं और इस आयत का यही मफहूम है कि लोगों पर अपना गुस्सा नहीं उतारते, बल्कि गुस्सा पी कर लोगों को तकलीफ देने की बजाय राहत पहुंचाते हैं और उस पर अल्लाह ताला की जनाब से सवाब की उम्मीद रखते हैं। वलाफीना अनिन नास, वो लोगों से दरगुजर करते हैं और जो उन पर जुल्म करे उसे भी माफ कर देते हैं, हत्ता कि उनके दिलों में किसी के मुतालिक कोई मैल नहीं होता। यही मोमिन का कामिल तरीन दर्जा है। इसलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वो मोहसिन बंदों को दोस्त रखता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं 3 बातों पर कसम खाता हूँ। एक तो ये कि सदके से माल कम नहीं होता, दूसरा ये कि दरगुजर करने से बंदे की इज्जत में इजाफा होता है, तीसरा ये कि अल्लाह ताला ये तवाज़ो व इंकिसारी करने वाले का मुकाम बुलंद करता है। हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ये आरज़ू रखता हो कि जन्नत में उसके आलीशान महल हों और दर्जात बुलंद हों, उसे चाहिए कि वो जुल्म करने वाले को माफ़ करे, महरूम करने वाले को अता करे और कता ताल्लुकी करने वाले से सिला रहमी करे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन निदा देने वाला पुकारेगा, ए लोगों को माफ़ करने वालों, अपने रब की बारगाह में हाजिर हो जाओ और अपना अजर व इनाम हासिल कर लो। माफ़ करने वाले का अजर जन्नत है। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशातन, जब भी उनसे कोई गुनाह सरज़द होता है तो फ़ौरन इस्तग़फ़ार करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसी बंदे से गुनाह सरज़द हो गया, उसने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, है मेरे परवरदिगार, मुझसे गुनाह हो गया है, मुझे माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मेरे बंदे ने गुनाह किया और उसे मालूम है कि उसका रब उसके गुनाहों को माफ़ करता है और उनकी सज़ा देता है। फिर उस बंदे से एक और गुनाह का इर्तिकाब हो गया, अल्लाह ने माफ़ कर दिया और इसी तरह तीसरी मरतबा भी माफ़ कर दिया। जब चौथी बार गुनाह किया और अल्लाह ताला से माफ़ी तलब की तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को फरमाया, ए फरिश्तों, गवाह रहना, मैंने अपने इस बंदे को माफ़ कर दिया, अब मेरा बंदा जो चाहे करे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हमने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम आपकी ज़ियारत करते हैं तो हम पर रिक्कत तारी हो जाती है और आखिरत के सिवा हर चीज़ भूल जाती है, और जब अब आपसे जुदा होते हैं तो दुनिया की झंझट और अहलो अयाल की फिक्र में मशगूल हो जाते हैं। आपने इरशाद फरमाया, तुम्हारे दिलों की जो कैफियत मेरे सामने होती है, अगर यही हर वक्त कायम रहती तो फरिश्ते
तुमसे मुसाफा करते और तुम्हारी ज़ियारत के लिए तुम्हारे घरों पर उतरते। अगर तुम गुनाह नहीं करते तो अल्लाह ताला तुम्हारी जगह ऐसी कौम को ले आएगा जो गुनाह करेगी और उस पर मग़फ़िरत तलब करेगी, तो अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देगा। हमने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत की बनावट कैसी है? आपने फरमाया कि वहाँ एक ईंट सोने की और एक चांदी की, और उसका गारा मुश्क का, उसके कंकर मोती और याकूत के, और उसकी मिट्टी ज़ाफ़रान की है। जो भी उसमें दाखिल होगा उसकी नेमतों से बहरामंद होगा, वो हमेशा हमेशा के लिए उसमें रहेगा और उसे मौत का खटका नहीं होगा, ना उसके कपड़े बोसीदा होंगे, ना उसका शबाब ढलेगा। 3 अफराद की दुआ रद्द नहीं होती, आदिल हुक्मरान, रोज़ादार और मजलूम जिसकी दुआ बादलों पर उठाई जाती है और उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मुझे मेरी इज्जत की कसम, मैं तेरी ज़रूर मदद करूँगा, ख्वाह कुछ देर के बाद। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैं जब भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हदीस सुनता हूँ तो अल्लाह ताला मुझे उससे नफ़ा देता है, और जब कोई दूसरा शख्स मुझसे हदीस बयान करता है तो मैं कसम लेता हूँ, अगर वो कसम उठा ले तो मैं उसकी तस्दीक कर देता हूँ। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुझसे हदीस बयान की है और उन्होंने सच फरमाया कि उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा गुनाह करे फिर अहसन तरीके से वज़ू करके 2 रकात नमाज पढ़े और अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करे तो अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमा देता है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़ित्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो शख्स भी कामिल वज़ू करके अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़े, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, वो जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा वज़ू किया, फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आपने फरमाया, जो शख्स मेरे जैसा वज़ू करे और फिर 2 रकात नमाज अदा करे जिसमें उसके दिल में किसी किस्म का ख्याल न आए तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह माफ़ फरमा देता है। इस तरह ये हदीस चारों खुलफाए राशिदीन हुज़ूर सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं। कुरान पाक की आयत करीमा भी इस बात पर दलालत करती है कि इस्तिग़फ़ार गुनाहगारों के लिए नफ़ामंद है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि जब यह आयत करीमा नाज़िल हुई तो शैतान रोने लगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करो और इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ो। ये हालत देखकर शैतान कहता है कि मैं लोगों को गुनाहों से हलाक करना चाहता हूँ और वो मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह और इस्तिग़फ़ार से हलाक करते हैं। और जब मैंने उनकी ये हालत देखी तो मैंने उन्हें ख्वाहिशात नफसानी में मुब्तला कर दिया। अब वो अपने आप को राह रास्त पर गुमान करते हैं, हालांकि वो हिलाकत में हैं। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इब्लीस ने कहा, ए रब, मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं बनी आदम को आखिरी दम तक गुमराह करता रहूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझे भी मेरी अज़मत और जलाल की कसम, जब तक वो मुझसे मग़फ़िरत तलब करते रहेंगे मैं उन्हें माफ़ करता रहूंगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि एक आदमी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे गुनाह सरज़द हो गया। आपने फरमाया, जब तुमसे गुनाह हो जाए तो अपने रब से मग़फ़िरत तलब किया करो। हत्ता कि उसने जब चौथी बार अर्ज़ की तो आपने इरशाद फरमाया, अपने रब से मग़फ़िरत तलब करो यहाँ तक शैतान मायूस हो जाए। वमन यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह ताला के सिवा गुनाहों को कोई माफ़ नहीं कर सकता। मसनद इमाम अहमद में है कि एक कैदी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गया तो वो कहने लगा, ए अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में तौबा का ख्वास्तकार हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से नहीं। आपने फरमाया, उसने साहिब हक को पहचान लिया। इसरार का मायने ये है कि वो जल्द ही अपने गुनाह से तौबा करते हैं, अपने रब की तरफ रुजू करते हैं और गुनाह पर कारबंद नहीं रहते। उनसे जो ही कोई गुनाह सरजद होता है तो फौरन अल्लाह ताला से तौबा करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो गुनाह पर मुसिर नहीं जो गुनाह के बाद अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करता है, अगरचे उससे एक दिन में 70 मरतबा भी गुनाह सरजद हो जाए। यानी 70 बार गुनाह करने के बाद अगर वो अल्लाह से मग़फ़िरत चाहेगा तो उसे मुसिर नहीं कहेंगे। वहुम यालमूना, यानी वो जानते हैं कि जो भी अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल करता है। यह आयत करीमा इन 2 आयात की मिसल है। आलम यालमू अन्नल्लाहा हुवा यक़बलु तौबता अन इबादिही, सूरह तौबा। तर्जुमा, क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह ताला ही अपने बंदों की तौबा कबूल करता है। वमन यामल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफ़ूरर रहीमा, सूरह निसा।
ترجمہ، اور جو شخص برا کام کر بیٹھے یا اپنے آپ پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا پائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر ارشاد فرمایا، تم لوگوں پر رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا، تم اللہ سے مغفرت طلب کرو تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ باتیں بنانے والوں کے لیے ہلاکت ہے اور گناہوں پر اصرار کرنے والوں کے لیے بھی بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ متقین کی یہ صفات بیان کرنے کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی جزا اس کی طرف سے مغفرت اور ایسی جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور عمل کرنے والوں کے لیے یہ بہترین اجر ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 137 سے لے کے 143 137 to 143 قد خلت من قبلکم سنان فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ان یمسسکم کرہ فقد مس القوم کرہ مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس وليعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا يحب الظالمین ولیمحص اللہ الذین آمنوا ویمحق الکافرین ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جہدوا منکم ویعلم الصابرین وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ ترجمہ، گزر چکے ہیں تم سے پہلے قوموں کے عروج و زوال کے قاعدے، پس سیر کرو زمین میں اور اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ کیسا انجام ہوا دعوت حق کو جھٹلانے والوں کا۔ یہ ایک بیان ہے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اور ہدایت اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے واسطے، اور نہ تو ہمت ہارو اور نہ غم کرو اور تمہیں سربلند ہوگے اگر تم سچے مومن ہو۔ احد میں اگر لگی ہے تمہیں چوٹ تو بدر میں لگ چکی ہے تمہارے دشمن قوم کو بھی چوٹ ایسی ہی، اور یہ ہار جیت کے دن ہم پھراتے رہتے ہیں انہی لوگوں میں، اور یہ اس لیے کہ دیکھ لے اللہ تعالیٰ ان کو جو ایمان لائے اور بنا لے تم میں سے کچھ شہید، اور اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو، اور اس لیے کہ نکھار دے اللہ تعالیٰ انہیں جو ایمان لائے اور مٹا دے کافروں کو۔ کیا تم گمان رکھتے ہو کہ یوں ہی داخل ہو جاؤ گے جنت میں، حالانکہ ابھی دیکھا ہی نہیں اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، اور دیکھا ہی نہیں آزمائش میں صبر کرنے والوں کو، اور تم تو آرزو کرتے تھے موت کی اس سے پہلے کہ تم اس سے ملاقات کرو، سو اب دیکھ لیا تم نے اس کو اور تم آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہو۔ تفسیر، قد خلت من قبلکم، جنگ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے اور بہت سے زخمی۔ اللہ تعالیٰ انہیں تسلی دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ اس قسم کے حالات تم سے پہلے انبیاء کے رحم پر بھی گزر چکے ہیں، لیکن آخر کار غلبہ انہی کو حاصل ہوا اور کافر خائب و حاصل ہوئے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ تم پہلی قوموں کے بارے غور و فکر کرو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کافروں کا کیا انجام ہوا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ قرآن حکیم میں ان امور کو واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے، اور یہ اللہ کی کتاب ہمارے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ یعنی قرآن کریم میں تم سے پہلے لوگوں کے واقعات موجود ہیں اور یہ تمہارے دلوں کے لیے باعث ہدایت اور گناہوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ پھر مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جنگ احد میں جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے کمزور نہ ہونا اور نہ ہی غمگین ہونا، فتح و نصرت اور غلبہ تمہارے ہی لیے ہے۔ اگر تمہارے کچھ لوگ زخمی اور شہید ہو گئے ہیں تو تمہارے دشمن بھی تو پہلے زخمی اور قتل ہو چکے ہیں، یعنی ہم کبھی دشمن کو کسی حکمت کی وجہ سے تم پر غالب کر دیتے ہیں، اگرچہ اچھا انجام تمہارے ہی حق میں ہوگا، اور یہ وقتی شکست اس لیے ہوئی تاکہ ہم دشمن کے مقابلے میں صبر کرنے والوں کا امتحان لیں، اور جو مدت سے شہادت کی آرزو کرتے تھے انہیں موقع دیں کہ وہ اپنی جان و مال ہماری راہ میں خرچ کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اس شکست کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کے گناہ معاف کرے اور نیکوکاروں کے درجات بلند کرے، اور کافروں کو تباہ و برباد کرے، کیونکہ وہ غالب ہو کر تکبر اور سرکشی میں مبتلا ہو جائیں گے، یہی چیز ان کی ہلاکت کا باعث ہوگی۔ پھر ارشاد فرمایا کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم مصائب و مشکلات کی آزمائش سے گزرے بغیر ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا۔ ترجمہ، کیا تم خیال کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پر وہ حالات نہیں گزرے جو تم سے پہلے لوگوں پر گزرے ہیں، انہیں سختی اور مصیبت پہنچی اور وہ لرز اٹھے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، سورہ العنکبوت
तर्जमा क्या लोग ये ख्याल करते हैं कि उन्हें सिर्फ इतनी बात पर छोड़ दिया जाएगा कि वो कहें हम ईमान ले आए और उन्हें आजमाया नहीं जाएगा, इसलिए इरशाद फरमाया अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत, यानी इब्तिदा व आजमाइश के बगैर जन्नत में दाखिला मुमकिन नहीं। अल्लाह ताला अपनी राह में जहाद करने वाले मुजाहिदीन और दुश्मन के मुकाबले में सब्र करने वालों का इम्तहान लेता है। वलक़द कुंतुम तमन्नौनल मौत, ऐ मोमिनो तुम आज से पहले दुश्मनों के साथ मुकाबले की तमन्ना किया करते थे और उनके मुकाबले के लिए सख्त परेशान थे। आज तुम्हारी तमन्ना पूरी हो चुकी है और जो कुछ तुम मुतालबा किया करते थे वो तुम्हारे सामने है। आगे बढ़कर दुश्मन के साथ डट कर मुकाबला करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुश्मन के साथ मुकाबले की तमन्ना न किया करो, अल्लाह ताला से आफियत तलब करो और जब दुश्मन के साथ तुम्हारा मुकाबला हो जाए तो डट जाओ। जान लो कि जन्नत तलवारों के साए तले है, इसलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तुमने मौत का अपनी आंखों से मुशाहिदा कर लिया, यानी तलवारें आपस टकरा रही हैं, नेज़े हरकत में हैं। क्या खूब गुमसान की जंग जारी है। यहाँ मौत को जो कि गैर महसूस चीज़ है, महसूस चीज़ के साथ तशबीह दी गई है। मुतकल्लिमीन इसे तख़य्युल से ताबीर करते हैं, यानी गैर महसूस चीज़ को महसूस ख्याल करना। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।